آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس جہانوں کے بادشاہ سے دعا کرتی ہوں وہ آپ کو برکتوں والی، رحمتوں والی، عافیت اور سلامتی والی، امن والی زندگی نصیب فرمائے۔ حیدرآباد کے لیے خصوصی دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی زندگیوں کو اپنے لیے قبول فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شہر کو قرآن کا شہر بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے یہاں کے مکینوں کو وسعتوں والا رزق نصیب فرمائے اور آپ کی اولادوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب لوگوں سے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے وہاں آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ وہاں انسان کے لیے ایسے دکھ اور ایسے غم ہیں کہ انسان کو اپنے پاؤں کے نیچے کی زمین پسندی بھی فیل ہوتی، بہت پھسلن ہے۔ ایسے میں انسان کے لیے ثابت قدم رہنا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تاریخ انسانی کے 5 ایسے واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور اس کی توسط سے اپنی زندگی کے لیے اور سب کی زندگی کے لیے اسباب اخذ کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کا الاؤ تیار ہے، سارے انسان ایک انسان کی مخالفت میں ایسے موڑ پر آ گئے کہ بس جس نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے ہم نے اسے جلا ڈالنا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ کے کنارے کھڑے ہوئے بھی سکون میں رکھا اور آگ میں کود جانے کے باوجود بالکل سکون اور اطمینان میں رہے؟ اور میں آپ کے سامنے وہ منظر بھی رکھنا چاہتی ہوں جہاں اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام سکن ڈیزیز میں مبتلا ہے، ایسی ڈیزیز ہے 18 برس تک جس میں مبتلا رہے اور بیماری کی وجہ سے چوزے کی طرح ہو گئے۔ گرم دے دیں گے مما، لینا بچے وفات پا گئے، مال ختم ہو گیا، جو کچھ بھی زندگی میں پاس تھا کچھ بھی نہ رہا۔ ایسی محرومیوں کے درمیان تکلیف دہ صورتحال میں ایوب علیہ السلام کو کس چیز نے ثابت قدم رکھا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ذرا بھی اپنے مقام سے ہٹے نہیں۔ اور میں ضرور آپ کو ایسے مقام تک لے جانا چاہتی ہوں جہاں سیدہ فاطمہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے گزرتی ہے، دن بھر پانی بھرتے ہوئے، مشق اٹھا کے چلتے ہوئے کس طرح سینے کی ہڈیاں تک باہر آ گئی ہیں، چکی پیستے ہوئے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے ہیں۔ ان مصیبتوں اور تکلیفوں کے درمیان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ذرا دراڑ نہیں آئی۔ اور میں ضرور آپ کے سامنے اس کنویں کو بھی رکھنا چاہتی ہوں جس میں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے دھکیل دیا۔ اندھے کنویں میں 3 دن
रहे फिर बिक गए, फिर किस तरह से अजीज मिस्र के घर पे पहुंचे, फिर कैसे कैद खाने में पहुंचा दिए गए। पूरी जवानी मुख्तलिफ तरह की मुसीबतों और आजमाइशों में रही। वो कौन सी चीज थी जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमाए रखा? वो चीज क्या हमारी जिंदगी में आ सकती है? यही वो चीज है जो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ सफर करने में मुआविन साबित होती है, मददगार साबित होती है। ये ईमान का जीपीएस है। जैसे जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है ना, जिससे आपको रास्ते का पता चलता है, जिससे ये पता चलता है कौन सा मोड़ आया है और इस मोड़ पर क्या डिसीजन लेना है, क्या फैसला करना है। और ये जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसकी वजह से हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तक, उसकी रजा, उसकी जन्नत तक पहुंचाने के लिए ये ईमान का जीपीएस है, जिसके तवस्सुत से हमें पता चलता है अब हम किस मकाम पर हैं, हमें इस मोड़ पर क्या फैसला करना है, हमें कैसे अपनी मंजिल को खोना नहीं है। मंजिल की तरफ जाने की तरफ एक कदम भी उल्टा पड़ जाए ना, तो इंसान 100 मील दूर की मुसाफत पर जा पड़ता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पर यकीन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के उन फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसकी तकदीर पर और उसके आखिरत के दिन पर ईमान है, जो हमें ज़िंदगी में हमेशा हमारी पोजीशन बताता रहता है, जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के ताल्लुक पर जमाए रखता है, जो हमें हमारी मंजिल जन्नत तक, अल्लाह की रज़ा तक पहुंचाने के लिए हमारा मुआविन और मददगार बनता है। ईमान कितनी बड़ी दौलत है। हमारे असलाफ में से किसी ने कहा, अगर काफिर को ये पता चल जाए कि हमारे पास कितनी बड़ी दौलत है, तो वो तलवारें लेकर हमसे जंग करने के लिए आए, इस दौलत को छीनने के लिए आए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अंबिया का मामला तो यकीन का मामला था ही। मैं ईमान के इस रास्ते पे चलने के लिए आपके सामने एक मंजर रखना चाहती हूँ, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले को सूली पे चढ़ाने के लिए पूरे इंतजामात कर लिए गए। उन्हें तख्ते के साथ बांध दिया गया, उनके गले में फंदा भी डाल दिया गया, और अब एक लम्हे में उन्हें इस दुनिया से अगली दुनिया में एंटर होना था। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि पहले इनसे गुफ्तगू कर ली जाए। इस कदर ईमान अफरोज गुफ्तगू है जिसमें हमारे लिए बहुत सारे असबाब हैं। उस सहाबी से सवाल होता है कि जिस मकाम पर तुम हो, अगर तुम्हारी जगह पर मोहम्मद होते तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं था? सूली पे चढ़ के एक फर्द जवाब देता है। इमेजिन कर सकते हो उसका ईमान कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है। वो जवाब देते हैं, अल्लाह की कसम, अगर मुझे आजाद करने के बदले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में एक कांटा भी चुभ जाए तो मुझे दोबारा नहीं, क्योंकि ईमान की हकीकत को जान चुके थे। और अब सोचे सईदा सुमैया, जिन्हें ईमान की पादाश में, इस्लाम लाने की पादाश में किस तरह से इज़ाएं दी गई, उनकी मुश्कें कसी गई और ताक ताक के निशाने लगाए गए। हम जब तारीफ पढ़ते हैं तो लफ्ज़ों के अंदर छुपे हुए इस मंजर को नहीं देख पाते थे।
क्या आप सोच सकते हैं कि एक ईमान लाने वाली औरत को ईमान की सजा में कहाँ पे नेज़ा मारा गया? उनके पोशीदा आज़ा पर खून का फवारा उगला और सैयदा सुमैया अपने रब के पास पहुंच गई। कौन सी चीज़ थी जिसने जमा के रखा? ईमान का इजहार तो हम भी करते हैं, इकरार तो हम भी करते हैं। हम क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला को पर बिलीव नहीं रखते? क्या हमें पता नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाने से हम मोमिन बनते हैं, मुसलमान बनते हैं? हमारे और उनके दरमियान इतना फर्क क्यों है? आप सोच सकते हैं कि एक सजा इंसान को किस तरह से उसके कदम फिसला देती है। लेकिन वही सहाबी जब सूली पर है, उनका जब कान कटा, खून का फवारा उगला, जब उनका बाजू कटा, इकट्ठे एक वक्त में उन्हें सूली नहीं दी गई, एक एक उस काटते गए। अब भी छोड़ दो तो तुम्हें आज़ाद कर देंगे, अब छोड़ दो तुम्हें आज़ाद कर देंगे। आप एक शख्स को इमेजिन करें कि जो सूली पे लटका हुआ सारी दुनिया के सामने है, खून के फवारे उबल रहे हैं, और वो कहता है, सारी दुनिया को मैसेज दे के चला गया, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। क्या जान दे देना कामयाबी है? क्या अपना एक एक उज़्व कटवा देना कामयाबी है? जो इस दुनिया से चला गया, उसके लिए दुनिया में फिर क्या बाकी रह गया? क्या अपने माल को खो देना, अपने घर बार को खो देना, अपने प्यारों को खो देना कामयाबी है? हिजरत के सफर में वो मंजर भी आपके सामने रखना चाहती हूँ जो सईदा आयशा की जुबान से हम सुनेंगे। कहती मुझे ये पता नहीं था कोई खुशी से भी आंसू बहाता है। रसूलुल्लाह हमारे घर आया करते थे, लेकिन एक दिन वो हमारे घर आए तो उन्होंने कहा, इतने से सब अफराद को यहाँ से हटा दीजिए। तो सईदा अबू बकर ने कहा, ये मेरे घर वाले हैं, इनके सामने बात करने में हरज नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सफर हिजरत के लिए आपको मेरे रफीक सफर के तौर पर मुंतखब किया है। तो सईदा अबू बकर सिद्दीक की आंखों से खुशी से आंसू रवा हो गए। आज जब हम हिजरत का सफर के बारे में सोचते हैं